नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश सत्यमेव जयते, लोकतंत्र का नया मंदिर। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, और मन की बात अपने इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद के थाल की तरह मानते हैं। मन की बात का जो हमने पिछले माह 100वां एपिसोड सुना था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा ये मन की बात कार्यक्रम बन गया है। अब से थोड़ी ही देर में हम आपको एक बार फिर लिए चलेंगे संसद भवन के नवनिर्मित भवन के दूसरे भाग में। और अभी मन की बात कार्यक्रम का जो हम उल्लेख कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस मन की बात में म्यूजियम डे जो हमने पिछले कुछ दिनों पहले मनाया, उसका भी उल्लेख किया। राजीव, दूसरे भाग में अभी क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? जी, जैसा आप कह रही थी, एज यू आर मेंशनिंग संध्या, दैट द ऑफिशियल एंगेजमेंट्स फॉर द new parliament inauguration would start, the second half of the programs would start at around 11:30 a.m. with the public programs related to the inauguration and with the arrival of the guests. And 12 baje, yani at 12 noon, the Prime Minister will arrive. After the arrival of the Prime Minister, there would be the national anthem would be sung, the Rajya Sabha, following which the Rajya Sabha's Deputy Chairman Dr. Harivansh will deliver the welcome speech. And according to the schedule, there was a screening of movies followed by that speech by Dr. Harivansh. And the Rajya Sabha Deputy Chairman Dr. Harivansh will read out a message from Honorable Vice President Jagdeep Dhankar, which would be followed by the Vice President's message, and then it would be followed by Honorable President's message. Draupadi Murmuji's message would be read out, and after that, according to the schedule, the leader of opposition in Rajya Sabha is then supposed to read out his message. That is to be followed by a speech from Lok Sabha Speaker Om Birla. At around 1 p.m., the Prime Minister would release a postal ticket commemorating 75 years of India's independence and a coin. And to conclude the event, Thanksgiving address would be made by the Secretary General of Lok Sabha, Utpal Kumar Singh. और राजीव, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने इस अवसर पर कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। This is the national pride and pride and symbol of vibrant democracy. We are very happy in our duration. Our Honorable Prime Minister is inaugurating a modern Parliament House with all the digital facilities, and it will be wonderful, and I hope all the members will deliver for the good of the nation to make this nation strong through this house. Thank you, sir. आज हमारी नई संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और एक बहुत विधिवत एक सांस्कृतिक तरीके से जिस प्रकार से इस नए भवन का उद्घाटन करके और एक नए युग की शुरुआत हुई है, इस अवसर पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। नए संसद भवन भारत के नए सामर्थ्य को दर्शाता है, और मैं समझता हूं ये सनातन पद्धति से आज जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, इससे सनातन के बगैर भारत की पहचान अधूरा है। नया पार्लियामेंट का आज जो इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हस्ते हुआ, इसके लिए देशवासियों के लिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बहुत बधाई। आज़ादी के अमृत काल में आगे 100 साल की सोच के इस पार्लियामेंट को बनाया है, सही में देशवासियों के लिए गर्व की बात है। There you see our national emblem atop the new Parliament building. It is a 65,000 square meter
building, the new Lok Sabha chamber, which is supposed to be almost 3 times larger than the Lok Sabha chamber in the first Parliament House, the Rajya Sabha chamber, which has a theme of lotus, the national flower, inside, depicted at various points, and of course on the ceiling too. The Rajya Sabha, which would be having a seat for 384 members. There you see the Prime Minister with the Sengol, along with Lok Sabha Speaker Om Birla ji, is lighting the lamp as has been the tradition on any auspicious occasion. We talked in detail about the Sengol, how in 1947 it was handed over to the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. It stands for just rule, and it is said that the Chola Empire kings used to pass it on to the next ruler. It denoted just rule, justice for all. Now we're taking you to the Parliament premises, where the second half of the function, that is commemorating the new Parliament building, is about to start. Sandhya. राजीव, जिस तरह से हम राष्ट्र चिन्हों की बात कर रहे थे, तो इस संसद भवन के जो शीर्ष पर, नवनिर्मित भवन के इस शीर्ष पर काशी की अनुपम छवि, जो सिंह, जिसे अशोक की लाट भी कहते हैं, वो नज़र आती है। नए संसद भवन की छत पर ये कई फीट ऊंचा है और इसका प्रतीक जो है वो कई दूर से लोगों को नज़र आएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि 1950 को संविधान को अंगीकृत करते हुए इसे स्वीकृत किया गया था। और इसकी खासियत की अगर हम बात करें राजीव, तो इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं और इसका जो मुंह है उसके चारों दिशाओं में घूमते हुए नजर आते हैं। उनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र, यानी कि जो कानून का पहिया होता है, वो नजर आता है। इसी पर सवाल करते हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन जी से। अखिलेश जी, जैसे संध्या बता रही थी, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है, उसके ऊपर भी स्थापित किया गया है नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक को हमारे, जिसमें 4 सिंह हैं, दिखते 3 हैं देखने वाले को, चौथा सिंह पीछे होता है। उसे भी नए सिरे से स्थापित किया गया था। उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं। देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो और वो राष्ट्रीय चिन्ह वो चिन्ह है जिसके आधार पे हमने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद जब आज़ादी मिली तो उसके बाद वो हमारा प्रतीक चिन्ह बना। और निश्चित तौर पे यह जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस सबसे बड़े लोकतंत्र की जो थाती है, यह एक ऐसी थाती है जो हमें ताकत देती है। वो जो सिंह, 4 जो सिंह हैं, वो हमें ताकत देते हैं, और वो हमें ताकत इस रूप में देते हैं कि देखिए, हम आक्रामक नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर कोई हम पे किसी तरह की निगाह करेगा, बुरी निगाह करेगा, तो उसको हम जवाब देंगे। हमारा रक्षात्मक है, और वो रक्षा जो है, वो रक्षा है
धर्म का मतलब कि जो हमारी जनता है, हमारी जनता की रक्षा के लिए, हमारे हितों की रक्षा के लिए और उसके अलावा दुनिया में शांति को स्थापित करने में जो हमारी ताकत लग सकती है उसके लिए। और इसीलिए ये जो नया संसद बना है, उस नए संसद के ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और उन्होंने वहां पूजा अर्चना भी की और उसके बाद उसे स्थापित किया गया। तो आप बहुत दूर से भी अगर देखेंगे तो वो आपको वो पूरा राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है वो पूरा दिखता है और आपको समझ में आता है कि वो एक भारत का वो एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र का ये मंदिर है। जैसे आप पुराने इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पुराना हमारा जो संसद का भवन है, उस संसद भवन पे उस तरह की संभावना नहीं थी उस समय, क्योंकि जिस समय वो बना 1927 में, उस समय अंग्रेजों का राज था और उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद उस तरह की व्यवस्था यहाँ संभव नहीं थी। तो आज जब हमारा नया संसद, भारत का संसद, भारत का अपना आत्मनिर्भर भारत, आजाद भारत, और उसके बाद जो जिस तरीके से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया थी, लेकिन उसके बाद वो किसी को पता नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उस दंड को, राजदंड को, जो कई लोग कह रहे हैं कि वो धर्म दंड है, कि धर्म के आधार पे, धर्म का मतलब कि रिलीजन नहीं बल्कि धर्म का मतलब कि जो धारण करने वाले चीज है, न्याय के आधार पे जो राज होता है, उस राज करने के लिए वो दंड चला, इसीलिए उसके लोकसभा में स्थापित किया गया है। और लोकसभा आप जानते हैं कि जनता के द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का वो सभा होती है और उसी सभा में आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और जैसा कि पहले से ही पता था राजीव कि इस बिल्डिंग में लोकसभा में इतनी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य सभी यहाँ बैठ सकते हैं। और अभी मैं अंदर से ही आ रहा था तो अंदर से जो नजारा दिख रहा था, चारों तरफ जो गैलरियां बनी है, वो गैलरियों में भी सारा गैलरी में खचाखच लोग भरे हुए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं आ रहे हैं, वो सांसद जा रहे हैं, लेकिन जो अतिथि जिनको बुलाया गया था, जिसमें कि कई गणमान्य अतिथि भी हैं, उसके अलावा अतिथि के रूप में आना शुरू हो चुके हैं। अखिलेश, आप देख सकते हैं तमाम पार्टियों के सांसद महोदय सदन में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ राजीव, आज का दिन बेहद अहम है, ऐतिहासिक है, गौरवशाली भी है। संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो ऐतिहासिक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम लोग खड़े हैं संसद के नए भवन के परिसर में और यह वो स्थान है जहां लगभग 1 घंटे तक पूजा अनुष्ठान, हवन और मंत्रोच्चार का कार्यक्रम हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी अग्निकुंड में हवन की अग्नि अभी प्रज्वलित है और आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहां बहुत देर तक दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आए और अन्य स्थानों से आए आचार्यों ने पूजा पाठ कराई। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहली बार हुई हैं, जैसे संसद भवन के अंदर दीपक का प्रज्वलित होना। भारतीय संस्कृति में किसी भी अनुष्ठान में हम दीपक को साक्षी मानते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं, तो वो दीपक जलाया गया। हवन भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। किसी भी बड़े आयोजन से पहले हवन अवश्य किया जाता है और जो देवताओं को मानने की एक पद्धति है, प्रकृति की पूजा है, उसका आह्वान हम करते हैं और सारा कुछ भारतीय संस्कृति में हम प्रकृति को समर्पित करते हैं, सारे देवताओं को समर्पित करते हैं और वापस वो हमको उनसे वापस मिलता है। इस स्थान पर जो आज आयोजन हुआ, जिस सेंगल की बड़ी चर्चा है और जिसे 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि भाई हमारे यहाँ पश्चिम में तो एक पद्धति होती है कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो हम कोई प्रतीक चिन्ह हमारा होता है हमारी सत्ता का, उसे हम हस्तांतरित करते हैं, तो आपके यहाँ ऐसा क्या है? तो सी राजगोपालाचारी जी बड़े विद्वान, और उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है। उन्होंने बहुत खोजबीन कर निकाला कि सेंगल की एक ऐसी परंपरा रही, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक एक बड़ा हिंदू साम्राज्य चोल साम्राज्य रहा। और चोल साम्राज्य को अगर समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भारत का ग्लोबल फुटप्रिंट बर्मा में, श्रीलंका में, कंबोडिया में या बहुत सारे देशों में जो फुटप्रिंट आप देखते हैं वो चोल साम्राज्य के समय की देन है।
तो उस समय एक सेंगल, जिसे राजदंड कहते हैं, और सेंगल का शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो समृद्धि, धन धान, इसकी संपन्नता, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो सेंगल एक दंड है जिसे राजदंड भी कहा जाता है। तो उसे हस्तांतरित करने का, उसे देने का प्रावधान ऐसा सी राजगोपालाचारी जी ने पता कर बताया, शोध करके बताया। तो फिर उसे ढूंढा गया और उस राजदंड को अंग्रेज़ों ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपा और इस तरह से एक प्रतीक रूप में वो, लेकिन उसके बाद उसे जहां स्थापित होना चाहिए था वहां न होकर वो स्थापित हो गया किसी एक म्यूज़ियम में। उसका जहां स्थान होना चाहिए था वहां ना जाकर एक म्यूज़ियम में चला गया। तो 75 वर्षों के बाद भारत के इतिहास में वह क्षण आया जब राजदंड को उसके सही स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे आज स्थापित किया गया। पूरे देश ने देखा एक ऐतिहासिक क्षण, एक सुप्त पड़ गई परंपरा का पुनर्जीवन। लेकिन उससे पूर्व इस स्थान पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ जो एक बड़ा आयोजन हुआ उसका एक बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। उस राजदंड को, उस सेंगल को अभिमंत्रित किया गया। उस पे देश भर से आए आचार्यों ने अपनी भावनाएं, अपनी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं अभिमंत्रित कर उसमें स्थापित की और तब जाकर वह राजदंड प्रधानमंत्री जी के हाथ में दिया गया। और जो अपनी परंपरा में हम मानते हैं कि प्रकृति में कई शक्तियां हैं, उन शक्तियों का आह्वान किया गया और तब जाकर उसकी शक्ति बनी। ये राजदंड राज का चलाने वाले को हर समय उनके मन में एक विशेष भाव रखता है कि मुझे कैसा शासन चलाना है और शासन चलाने का भाव क्या होना चाहिए। और मूल इसका जुड़ाव है धर्म से। जो हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जो हमारे सांसारिक अभ्युदय का भी कारण है और निःश्रेयस, संसार के बाद भी सद्गति प्रदान करता है, वह धर्म है। तो एक धर्म का जो स्थान है वो राजसत्ता से भी ऊपर है। इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे, इन सारे प्रतीकों के पीछे भारत की प्राचीन जो शासन पद्धति है, प्राचीन महान सभ्यता है, उसके इतिहास का, उसकी उन परंपराओं का अनुकरण किया गया। और इस रूप में आज एक ऐतिहासिक दिन, अभी से कुछ क्षण पहले प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया और पूरे देश ने देखा, हम सभी इसके साक्षी हुए। हम सभी लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य का दिन है। और कई परंपराएं जो पुनर्जीवित हुई हैं, कई ऐसी मान्यताएं जिसकी पुनर्स्थापना हुई है, कई ऐसे मूल्य जिन्हें हम कहीं तिरोहित कर चुके थे, उन सबको फिर से एक बार समाज जीवन के, राजनीति जीवन के और प्रशासन के केंद्र में लाने की एक प्रयास हुआ है। मुझे लगता है आज का दिन पूरे भारत के लिए बड़ा ही अहम है, बड़ा ही गौरव का दिन है, हर्ष का दिन है। और यह वो भी दिन है जब हम अपनी हजारों हजार वर्ष की प्राचीन परंपरा को फिर से एक बार याद करें। और संसद के नवनिर्मित इस भवन के दूसरे भाग का कार्यक्रम कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। हम दृश्यों में देख रहे हैं कि सभी माननीय सांसद सदन में पहुंच चुके हैं। सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, कई सारे गणमान्य अतिथि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के माननीय सदस्य इस समय पहुंच चुके हैं। As you can see, the pictures showing Dr. Murli Manohar Joshi, Sumitra Mahajan ji, the former Speaker of Lok Sabha. Just before that, we saw the present Chief Minister of Uttar Pradesh. Now we are seeing H.D. Devegowda, the former Prime Minister, along with the former President, Amit Shah ji, the Home Minister of India, and other members.
और संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर हुई पूजा अर्चना के बाद हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत ने कुछ वरिष्ठ सांसदों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं वो बातचीत। 28 मई 2023 ये तारीख इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम भारत के, एक आत्मनिर्भर भारत के नाम से याद की जाएगी, क्योंकि आज के दिन संसद भवन परिसर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह हुआ। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया, और ये जो उद्घाटन हुआ है इसमें आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में जो यहाँ पर लगाया गया है चित्र, जिसमें कि पूरी तरीके से इस बात को लिखा गया है कि ये राष्ट्र को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में, और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2080 ये नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर संसद है, आत्मनिर्भर भारत की। हमारे साथ कुछ संसद सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप आज के इस गौरवशाली दिन को? आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक दिन है। ये देश को नई दिशा में ले जाने के लिए, देश को अमृतकाल में ले जाने के लिए, और इस देश की जो राष्ट्र की धरोहर है और वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हमारी संकल्पना जो है उसको साकार करने के लिए पूरी भारतीय पद्धति से, सनातन पद्धति से इस भवन का निर्माण किया है। सारे संतों का आशीर्वाद लेकर के, धर्म दंड को साक्षी मान करके, और सारे देश की व्यवस्थाओं का यहाँ से संचालन होगा। सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं आज के इस दिन को, क्योंकि आप भी साक्षी बने हैं, और जब ये लोकार्पण समारोह हो चुका है अब, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, यह जो कार्य माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किए हैं, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा मिसाल है, और ये नए युग का एक अभ्युदय हुआ है। इससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है, और हम सभी लोग खुशी और उल्लास से हम लोग मनाते हैं कि यह महान समय, बहुत अमूल्य समय जो हम लोग को मिला है, यह भारत का उज्जवल भविष्य अच्छा होगा। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि मेरी संसद, मेरा गर्व, मेरा अभिमान। आप खुद सांसद हैं, और अब नए भवन में आप लोग सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे, ये कैसी अनुभूति है? नहीं, देखिए, भारतीय समाज जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का यह संकेत है। पूरे भारत के करोड़ों करोड़ नागरिकों के मनों में उत्साह, उमंग है। हम तेज़ी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था हैं। हम अपनी सनातन समाज जीवन को दुनिया के सामने ले जाने के नए परिदृश्य में खड़े हैं, और इसलिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये बदलाव का दिव्य और भव्य संकेत है। बिल्कुल ठीक है। सर, आप कैसे देखेंगे आज के इस दिन को, क्योंकि ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है हम सभी के लिए? आज का दिन जो है, नई संसद भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक लोकसभा, नई लोकसभा का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। इसके लिए मैं मानता हूँ कि ये पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। There you can see the pictures live from the new Parliament building, Lok Sabha chamber, and just before that we saw the arrival of the Lok Sabha Speaker. He, along with the Deputy Chairman of Rajya Sabha, Dr. Harivansh, are in waiting for the arrival of the chief guest, the Prime Minister of India, Narendra Modi, walking through and feeling the vibes in the new building of the Parliament of India. There you see the Lok Sabha Speaker along with the Deputy Chairman of Rajya Sabha, Dr. Harivansh, walking the corridors. निश्चित ही एक गर्व का दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए संसद के
नवनिर्मित भवन के लोकसभा कक्ष में सभी अतिथियों, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, विशिष्ट जनों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया है और अब से कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जिसके बाद इस अखिलेश जी, जैसा कि हम देख सकते हैं चित्रों से कि तमाम जो इस समय गेस्ट आने हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अगले कुछ मिनटों में? जगह है वो पूरी तरह खाली करा लिया गया है। ये पूरी तरह सैनिटाइज रास्ता बन गया है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही चंद मिनटों में इधर अंदर प्रवेश करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ से सीधे जाकर वे इधर जो हमारे, मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ, कैमरा जरा उधर घुमाइए, उधर जो वो अश्व द्वार, उधर जो गज द्वार है, गज द्वार से वो प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा के मेन चैम्बर में जाएंगे। उसी गज द्वार से वो सेंगोल लेकर भी गए थे अंदर और जहां उन्होंने स्पीकर के आसन के बगल में उसे स्थापित किया था, उसके बाद फिर वे लौट कर आए थे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, 12 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत है और 12 बजे से जिस तरीके से जो कार्यक्रम में है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बताएंगी कि किस तरीके का महत्व दिया गया है इस पूरे जो कार्यक्रम है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में वे पूरे लोकसभा, राज्यसभा, पूरे संसद उनके कस्टोडियन है वो, और इसलिए उनका संदेश पढ़ा जाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी संदेश पढ़ा जाएगा। उनका भी संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश के प्रोटोकॉल में वो नंबर 2 है और इसके अलावा वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण काम है, ये 2 महत्वपूर्ण काम होंगे। उसके अलावा देखिए जो स्वागत करने के लिए ओम बिरला जी मौजूद है, वहाँ मुख्य अतिथि का स्वागत होगा। मुख्य अतिथि निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर जब बैठेंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक संबोधन भी वहाँ होना है। नरेंद्र मोदी का संबोधन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की कल्पना तो कई सालों से की जा रही थी। दरअसल जब 1956 में जब 2 मंजिल से 2 मंजिल और बढ़ाया गया इस पुराने पार्लियामेंट भवन में, उसी समय से महसूस किया जाने लगा कि आगे आने वाले दिनों में शायद इस पार्लियामेंट में काम नहीं चलेगा क्योंकि जब भी नया परिसीमन होगा, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती है तो सांसदों की संख्या भी बढ़ानी होगी और सांसदों की संख्या अगर बढ़ानी होगी तो पुराने चैम्बर में नहीं काम चल सकता है। तो इसलिए उसके बाद कई बार विचार हुआ, कई बार विचार ड्रॉप हो गया, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद 2019 में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से तकरीबन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए और नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका शिलान्यास किया और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मात्र 2.5 सालों में यह संसद भवन हमारे सामने बनकर तैयार है। तो यह बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि किस तरीके से तकनीकी क्षमता हमारी बड़ी है। अखिलेश जी, जो मौजूदा संसद है उसमें 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 2 को मनोनीत किया जाता है लोकसभा के लिए और 250 का स्ट्रेंथ राज्यसभा में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1971 के सेंसस पर आधारित जो डिलिमिटेशन था उसमें यह निश्चित किया गया कि 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं की जा सकती है। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि 2026 किस लिहाज से अहम है और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 में नया संसद भवन जो बना है कह सकते हैं कि बिल्कुल समय पर बनाया गया है और अगर 2026 में सीटों की संख्या नए डिलिमिटेशन के तहत बढ़ाई जाती है लोकसभा में और उसी तरह से राज्यसभा में, तो वैसी स्थिति के लिए नया संसद भवन होना बहुत अहम हो गया।
निश्चित तौर पर राजीव आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1971 में जो सेंसस हुआ था, उसी सेंसस के आधार पे लोकसभा की कितनी सीटें होंगी वो पूरी तरह से उसी पे आधारित है। हालांकि बीच में यह मांग उठी कि जनसंख्या बढ़ गई है, तो जनसंख्या बढ़ गई है तो उसके लिहाज से सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तकरीबन 10 साल पहले की बात है। और उसके बाद देखिए एक दो चीजें लगातार भारत में चल रही थी। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण का भी काम। तो कुछ राज्यों ने खास तौर पे इस बात पे ऐतराज जाहिर किया कि जिन राज्यों की जनसंख्या नियंत्रित की गई है उन राज्यों को घाटा हो जाएगा। इसलिए जो उस समय पर उसके बाद जो जनगणना हुई थी उस जनगणना को आधार नहीं बनाया गया। लेकिन उसी समय तय हुआ कि 2026 में एक नया परिसीमन किया जाए, और उस नए परिसीमन के समय क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा यह सब मिलकर तय करेंगे कि जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया है और जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है थोड़ी, और उसके अलावा भूगोल का भी मामला है, कई राज्य का बंटवारा भी हुआ है, तो उन सारी चीजों को लेकर 2026 में परिसीमन होना अभी तक तय है। निश्चित तौर पे राजनीतिक मामला है, इस पे बहसें अभी चलेगी, अभी बहस दरअसल शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई राज्य बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित करना जो हमारा है तो हमको इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी है, लेकिन अभी तक यही तय हुआ है। और जब निश्चित तौर पे जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो गए हैं, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बाई कैमरल जिसको कहते हैं, 2 हाउस वाला हमारा संसद है, तो इसमें निश्चित तौर पे सीटों की संख्या बढ़ना निश्चित तौर पे एक अग्रसोची बात होती है। इसीलिए 550 जो सीटें थी लोकसभा में, उस लोकसभा की 550 सीटों की जगह नए जो पार्लियामेंट है उसमें 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो कह सकते हैं कि अखिलेश जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या फिर जो 33% महिलाओं के आरक्षण की जो बात की जा रही थी और लंबे समय से ये मामला अधर में लटका हुआ है, तो नए परिसीमन के बाद क्या ऐसी संभावना आपको बनती दिख रही है कि फिर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकें सीटें? देखिए ये मामला बिल्कुल राजनीतिक मामला है, और इस राजनीतिक मामले का परिसीमन से निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल ये तय करेंगे। आप जानते हैं कि कई बार संसद में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए देने पे कई बार चर्चा हुई है, कई बार विवाद भी हुआ है, कुछ दलों ने विरोध भी किया है। और देखिए मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजीव आ रहा है, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी संसद भवन के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जस्ट चंद सेकेंडों में संसद भवन के अंदर प्रवेश करेंगे। ये जो पूरी गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला है, और पूरी तरह एसपीजी की सुरक्षा में सैनिटाइज किया गया है पूरा ये रास्ता। आप जानते हैं कि संसद भवन में आमतौर पे काफ़ी भीड़ होती है, सांसद भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज करके ये किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहाँ गज द्वार से अभी थोड़ी देर में उनकी गाड़ी वहाँ गज द्वार पे पहुँच गई है, वहाँ से वो अभी बिल्कुल हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी की गाड़ी काफिला वो पहुंच चुका है संसद भवन के नए परिसर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा के एसजी, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल सभी उपस्थित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के इस नवनिर्मित भवन में प्रवेश करते हुए। Yes, we can see that the Prime Minister along with the Lok Sabha Speaker Om Birla, Rajya Sabha's Deputy Chairman Dr. Harivansh walking in the corridors of the new Parliament building and is walking up the stairs towards the new chamber of the Lok Sabha where the guests are seated. There is going to be messages read by Dr. Harivansh and speeches of the chairman of Rajya Sabha,
now you can see that उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, मैं महासचिव लोकसभा आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। भारत की संसद के इस नवनिर्मित भवन का देश की जन सामान्य को अर्पित करने का यह पावन उत्सव राष्ट्रगान से प्रारंभ होगा। इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करें। आज हम सभी भारतीय तथा हमारे मित्र देशों के प्रतिनिधि इतिहास निर्माण के साक्षी हैं। स्वाधीन भारत में राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं अस्मिता का प्रतीक यह नवनिर्मित संसद भवन प्रत्येक देशवासी के लिए मंदिर समान है। इस लोकशाही के मंदिर में सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को। माननीय श्री हरिवंश जी। संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री एच.डी. देवगौड़ा जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूतगण, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशगण, राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, लोकसभा और राज्यसभा के माननीय संसद सदस्यगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय अध्यक्षगण,
नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी, टाटा समूह के चेयरपर्सन श्री एन चंद्रशेखरन जी, प्रेस और मीडिया के सम्मानित साथियों, उपस्थित गणमान्य अतिथिजन, देवियों और सज्जनों, भारतीय लोकतंत्र के श्रद्धा स्थल भारत की संसद के नए भवन के लोकार्पण समारोह में आप सभी गणमान्य अतिथिजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आजाद भारत की अस्मिता और हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है, अविस्मरणीय क्षण है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आज़ादी के अमृत काल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और असाधारण प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए अपनी ओर से और समस्त देशवासियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। आज हम सब ऐतिहासिक अवसर पर इस भवन के प्रांगण में एकत्रित हैं। हमारे जैसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र के लिए यह गर्व का क्षण है। सम्मानित अतिथिगण, हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अनेक संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। बदलते समय के साथ माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आने वाले वर्षों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना एवं संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव भी महसूस किया जा रहा था। यही कारण है कि संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसदों की दक्षता बढ़ाने और संसदीय कामकाज की इफिशियंसी बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से संपन्न एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट भवन के निर्माण का आग्रह किया था। यह अपार हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी देखरेख में 2.5 वर्षों से भी कम समय में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भवन तैयार करवाया है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। यह नया भवन अपने आप में वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता की अद्भुत झलक मिलती है। इसमें हमारी संसद की जरूरतों के अनुरूप सौंदर्य और प्रौद्योगिकी का मिश्रण भी किया गया है। यह भवन त्रिकोणीय आकार के स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में पुराने भवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के बैठने का स्थान है। इन कक्षों में प्रत्येक सदस्य के लिए पूरी तरह डिजिटली वायर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित प्रणाली एवं इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया डिस्प्ले की सुविधा, अतिरिक्त सुरक्षा बटन के साथ मतदान प्रणाली सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें। देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगले 25 वर्षों में जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब इस अमृत काल में
निर्मित यह नया संसद भवन हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इस भवन में बैठकर हमारी संसद देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए अनेक कालजयी निर्णय लेगी और वह दिन दूर नहीं जब भारत आने वाले वर्षों में विश्व के लोकतांत्रिक देशों में शिखर पर होगा और समस्त विश्व को प्रभावी नेतृत्व देगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। गणमान्य अतिथिगण, संसद के नवनिर्मित भवन के निर्माण की अभूतपूर्व कीर्ति गाथा एवं इस कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय अध्यक्ष लोकसभा के आसन की दाहिनी ओर स्थापित ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल के महात्म्य से संबंधित दो विशेष फिल्म प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं। पहली फिल्म का शीर्षक संसद का नवनिर्मित भवन तथा दूसरी फिल्म का शीर्षक सेंगोल है। आइए हम इन फिल्म प्रस्तुतियों को देखते हैं। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए यह काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के
सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का
अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया और नए भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के अधीनमों से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि में विराजित हैं। ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवावडथुरई आदीनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया था, जिसका आयोजन भारतीय सभ्यता के अनुसार किया गया था। उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका, जो मिलना चाहिए था। कहानी मुड़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम की ओर, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68वें प्रमुख परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, वे सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम से इसका वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था, लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक बार इस अद्भुत संस्मरण के सार्वजनिक होने पर तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। माननीय प्रधानमंत्री एक परंपरागत प्रतीक की खोज में थे। तत्पश्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसका प्रमाण मीडिया विश्लेषणों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह ऐतिहासिक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में मिला। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास
न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आणै कहा जाता है। इस विचार से माननीय प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्वितीय प्रतीक को अमृतकाल के प्रतिबिंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरण कराता है। इस दृढ़ता के साथ भारत विश्व गुरु के रूप में अपना यथोचित स्थान ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है।